Hi students, this video is based on quadratic equation exercise 4.3. Starting exercise 4.3, let's go through basics of exercise 4.3. Now this is a quadratic equation, general formula of quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. If you want to find root of this equation, you can use quadratic formula. So what is quadratic formula? X equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. Now this b square minus 4ac is called discriminant, so that is equal to d equals to b square minus 4ac. Now if this d is greater than 0, if this b square minus 4ac value is greater than 0, then this quadratic equation has two distinct real root. Distinct means different, दो अलग रूट्स आएंगे, real roots. Okay, now if this is equal to 0, अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, so we'll get minus b plus minus 0 divided by 2a. So two roots are minus b plus 0 by 2a और माइनस b माइनस 0 by 2a. तो बेसिकली हमें दोनों वैल्यूज़ क्या मिलेंगी? माइनस b by 2a. So if d equals to 0, then 2 will get two equal roots. Okay, and when this d is less than 0, जब d नेगेटिव है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, we know that नेगेटिव ऑफ रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है सपोज, सो दिस नंबर इज not real number. So if d is less than 0, then no real roots. Okay, so if they say find nature of roots, तो तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, then say two distinct real roots. If discriminant is equal to 0, then say two equal roots. If it is less than 0, then no real roots. अगर नेगेटिव नंबर आता है रूट के अंदर, so that is not a real number. Okay, so this is the basis of this exercise. I will start exercise 4.3. Question number 1, find the nature of the roots. Nature of the root मतलब यही ढूंढने के लिए बोल रहे हैं. Real root exist, find them. अगर real root है तो find करो. Real root कब रहेगा? When it is discriminant is greater than 0 or when discriminant is equal to 0, then you have to find zeros. Otherwise anyway you can't find when it is less than 0. Now first one is 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. So a is 2, okay, coefficient of x square, b is minus 3 and c is 5. Now we'll find discriminant because they have asked to find nature of root. So d equals to b square minus 4ac. बहुत easy exercise है. b square is minus 3 square minus 4 into 2 into 5. So this is 9. Okay, and this is 4 2s are 8, 8 5s are 40. यहाँ पे ध्यान रखो minus 3 into minus 3 plus 9 होता है. Now plus 9 minus 40, one number is positive, other number is negative. क्या करते हैं हम? इसको subtract करेंगे और बड़े नंबर का साइन डालेंगे. So we'll get 31 minus 31. Now root of minus 31 is not a real number, so हमें पता है when d is less than 0, no real root. अब इसके रियल रूट्स है ही नहीं, so we can't find, so leave here only, so no need to find. We will find roots only when, we can find root only when d is greater than 0 or d is equal to 0. Now second one, 3x square minus 4 root 3 plus 4 equals to 0. a is 3, b साइन का ध्यान रखो, minus 4 root 3 and c is 4. Okay, so x square के coefficient is a, x का coefficient is b with sign, always write with sign, constant is c. Now what is discriminant? b square minus 4ac. So first we'll find what is nature of root. So b square is minus 4 root 3 square minus 4 into 3 into 4. अब minus 4 root 3 का स्क्वायर, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या करना है.
इसका मतलब है -4√3 इंटू -4√3। कोई भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, वेदर इट इज़ नेगेटिव नंबर स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर। वाई? बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? 4 है वो रैशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 4 जा 16। इरेशनल नंबर को इस √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 इंटू √3 इज़ 3, हमेशा याद रखो। √3 स्क्वायर, √2 स्क्वायर, यू विल गेट नंबर इटसेल्फ। सो √3 इंटू √3 इज़ 3। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज √3 मीन्स 3 रेज़ टू पावर हाफ। रूट का मतलब होता है रेज़ टू पावर हाफ। अब 3 रेज़ टू पावर हाफ, 3 रेज़ टू पावर हाफ का मतलब क्या है? 3 रेज़ टू पावर, इन दोनों हाफ को हम ऐड कर देंगे। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे। 8th स्टैंडर्ड में किया था ना, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे। सो हाफ प्लस हाफ 1, देयरफॉर √3 इंटू √3 इज़ 1। जैसे हम नहीं करते थे 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, दिस इज इक्वल टू वॉट? 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5, ऐसे करते थे ना। ऐसे 3 रेज़ टू पावर हाफ इंटू 3 रेज़ टू पावर हाफ का मतलब क्या है? 3 रेज़ टू पावर हाफ प्लस हाफ। ओके, so that is 3 raised to power 1. Therefore √3 into √3 is 3. Now 16 into 3 is 48. तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 48. दिस इज 4 4 जा 16, 16 3 से ये भी 48 है। 48 माइनस 48 0। डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिल गया? 0. सो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0 वी हैव इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। सो फाइंड कर लेंगे, because it is real root we need to find it. x is minus b plus minus, अब मैं b square minus 4ac की जगह डायरेक्टली d लिख रही हूँ। ओके, सो दैट इज डिवाइडेड बाई 2a माइनस b, माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ओके, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन का ध्यान रखो। Okay, plus minus 0 by 6. Now two roots are, x is either 4√3 plus 0 by 6 or x is 4√3 minus 0 by 6. Now 0 add करो या subtract करो, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। 4√3 by 6, here x is, second root is 4√3 by 6. Two roots are this. So both are equal root. So when discriminant is 0, why we are getting equal root? Because plus 0 minus 0, this thing will remain same. Okay, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स कट कर सकते हैं। ये √3 और 6 को मत करना, ये कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, √3 और 6 को भी कट कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। दिस इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल एंड 4 इज रैशनल, 6 इज रैशनल। यू कैन कट रैशनल रैशनल। So what you will get? 2√3 by 3. So two roots are 2√3 by 3, comma 2√3 by. So we'll get, when d is 0, we get 2 equal root, real roots. Next one is 2x squared minus 6x plus 3 equals to 0. So we have a equals to 2, b equals to minus 6 and c equals to 3. Find discriminant is b square minus 4ac. b square मतलब minus 6 का square minus 4 into 2 into 3. Okay, यहाँ ध्यान रखो, negative number square is positive. So you'll get 36 minus 6 into minus 6, minus minus plus हो जाएगा, 6 6 are 36, 4 2s are 8, 8 3s are 24. Okay, 36 minus 24 is 12. So it will come 12. Now this is plus 12. So it has two different real roots. Okay, so roots are distinct, means different. So x equals to minus b plus minus root of d by 2a. So हमारे पास आ जाएगा x as minus b क्या है? b क्या है? 6 minus of minus 6 plus minus root of 12 divided by 2 into a is 2. So वहाँ से हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, देन दिस इज प्लस माइनस √12 by 4.
ओके। नाउ रूट 12 को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। 2 6 2 3 ओके। सो दिस इज़ वॉट 2 इंटू 3 का रूट। 8 स्टैंडर्ड में किया था। 2 इंटू 2 4, वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड रूट 3, बिकॉज 3 सिर्फ एक ही है, सो इट विल रिमेन इनसाइड रूट। इसका मतलब बेसिकली क्या रहता है, रूट के अंदर 2 इंटू 3 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 3। ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2, और ये रूट 3 ऐसे ही बचेगा, क्योंकि उसके साथ और एक 3 नहीं है, सो इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली। सो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सो 12 इज़ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाए। इसमें से 2 कॉमन ले लो। ये 2 इंटू रूट 3 है, ये 6 है। 6 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 6 क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 3 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है 2 इंटू रूट 3, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, रूट 3, ओके, डिवाइडेड बाई 4। क्यों मैंने ऐसे कॉमन लिया, क्योंकि मैं इसको यहाँ से कट कर सकती हूँ, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2 रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 बाई 2, एंड सेकेंड वन इज 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो ये समझ में आया ना, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3। अगर ये दोनों, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसमें कुछ कॉमन है कॉमन, यहाँ पे 2 है, और ये 2 इंटू 3, ये 2 का मल्टीपल है। नीचे भी हमारे पास 2 का मल्टीपल है, मतलब अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 कॉमन निकाल के ही कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे अलग यहाँ से ऐसा नहीं कैंसिल करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से 2 को काट दिया, यहाँ पे इसको काट दिया, ऐसा नहीं करना है। हम कॉमन निकाल के 2 इंटू समथिंग आएगा, डिवाइडेड बाई समथिंग रहेगा, तो ही हम कट कर सकते हैं। Now you can cut it. So this is 3 plus root 3 by 2, 3 minus root 3 by 2 are the two distinct root for this equation. Question number 2, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. So पहला वाला है 2x square plus kx plus 3 equals to 0. इक्वल रूट की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कंडीशन है फॉर इक्वल रूट्स। अब ए हमारे पास ए क्या है 2, बी इज़ के एंड सी इज़ 3। अब ए बी और सी की वैल्यू अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। व्हाट इज़ इक्वेशन, जहाँ पे कुछ इक्वल टू का साइन हो, तो हमें जब इक्वेशन मिल जाएगी हम के की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो बी स्क्वायर इज़ के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास आएगा के स्क्वायर, 4 2 8, 8 3 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। टेक 24 दैट साइड, सो के स्क्वायर इज़ 24। हमारे पास के स्क्वायर है, हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ के प्लस माइनस, जब भी हम के स्क्वायर हमें दिया हुआ है और हमें के मीन्स के, देन आंसर विल कम प्लस माइनस रूट ऑफ 24। वाई इट इज़ प्लस माइनस रूट ऑफ 24, बिकॉज जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 4, बिकॉज माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज़ 4। तो अगर मैं बोलती हूँ कि किस नंबर को स्क्वायर करके 4 मिला, तो तुम बोल सकते हो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, करेक्ट। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, किसी नंबर को स्क्वायर करके हमें 24 मिल रहा है, तो तुम वो क्या वो हम बोलेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसको स्क्वायर करके हमें 24 मिल रहा है। तो तुम क्या बोल सकते हो, वो प्लस रूट 24 भी हो सकता है, माइनस रूट 24 भी हो सकता है। नाउ इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, वही है सेम, इसको हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 24 का। 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1, ओके। सो दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। सो जो पेयर में है, अब मैं इसको सेपरेट करके नहीं लिख रही हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। सो दिस इज रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 2, एंड 2 इंटू 3 दोनों का पेयर नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। सो व्हाट इज आंसर, के इज प्लस माइनस 2 रूट 6, ओके। सो दैट इज मीनिंग ऑफ दैट।
सो अगर इसके इक्वल रूट चाहिए, हमें इस इक्वेशन के इक्वल रूट चाहिए, तो k की वैल्यू +-2√6 हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड वन is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. तो कभी भी ऐसे दिया हुआ है, इन्होंने प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे. सो kx इंटू के एक्स इज के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू -2 इज -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की फॉर्म में आ गया है. पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है. सो व्हाट इज़ a? वॉट एवर कोफिशिएंट विथ एक्स स्क्वायर इज़ a. सो a इज़ k. b इज़ x के साथ जो भी कुछ है वो सारा b होता है, -2k, एंड c इज़ 6. ओके, सो व्हाट इज़ कंडीशन? दे हैव इक्वल रूट, सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0. मीन्स b स्क्वायर -4ac इज 0. वी गॉट इक्वेशन. यहाँ पे हम डालेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको हम सॉल्व करेंगे. नाउ b स्क्वायर इज व्हाट? ओके, -4 इंटू a इंटू c, c इज 6 इक्वल्स टू 0. सो ये क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, -2k स्क्वायर 2k इंटू 2 के बराबर करते हैं 4k स्क्वायर, पर आगे माइनस साइन लगा देते हैं, वो रॉन्ग है. जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं आंसर पॉजिटिव आएगा, बस ध्यान रखो. पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, आंसर पॉजिटिव रहेगा. सो दिस इज 4a एंड दिस इज 6 4 24k इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास k स्क्वायर है एंड k है, देर इज़ नो कांस्टेंट. अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी होता तो हम फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके k की वैल्यू निकाल लेते. अब यहाँ पे तीसरी टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल टेक कॉमन. सो व्हाट इज़ कॉमन हियर? 4, और 4 के टेबल में 24 आता है, तो 4 कॉमन हो जाएगा. k स्क्वायर एंड k में से k कॉमन आ जाएगा. सो व्हाट इज़ लेफ्ट इनसाइड k? -6 4 24, ओके, इक्वल्स टू 0. सो इन दोनों में से मैंने 4k कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचा? k -6 विच इज़ इक्वल टू 0. तो इसका क्या मतलब है? आइदर 4k इज़ 0 और k -6 इज़ 0. सो आइदर 4k इज़ 0 और k -6 इज़ 0. सो व्हाट इज़ पॉसिबल इज़ k -6 इज़ 0. सो k इज़ 6. Now 4 into something is 0, that means k is 0. Sorry, k is 0. अगर k 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन ही नहीं बचेगी. अगर k 0 हो गया तो 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट फॉर दिस इक्वेशन. Therefore we'll discard this one and we have k equals to 6 as answer. Now question number 3, is it possible to design a rectangular mangrove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो हमें rectangular mangrove है whose length is twice its breadth. So ऐसा rectangular garden जैसा है mangrove, जहाँ पे mango trees हैं, whose length is twice its breadth. Twice its breadth, तो breadth को x लो तो length 2x हो जाएगा. करेक्ट. So we have breadth, let breadth be x meters, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, एंड लेंथ इज 2x मीटर. एरिया गिवन इज 800 मीटर स्क्वायर. तो अभी हमें फाइंड करना है क्या पॉसिबल है ऐसा बनाने के लिए, ऐसा रेक्टेंगुलर मैनग्रूव बनाने के लिए. सो व्हाट इज एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया. लेंथ इज गिवन x, ब्रेथ इज गिवन 2x, and area is 800. So we get x into x is x square, 2x square is 800. So we have x square as 800 by 2. So हमें x square की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही. So root of 400. So 2 0 का 1 0 हो जाएगा. 4 is 2, so 20 meters. So length is breadth is 20 meter, length is 40 meter. Question number 4, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. देखो sum of ages of two friends दिया हुआ है 20 years. तो sum of कुछ भी दिया रहता है तो उसमें से एक को x ले लो, दूसरा क्या हो जाएगा? 20 minus x बचा हुआ. So let age of one of the friend be x years. So other friends age क्या हो जाएगा?
20 माइनस एक्स। क्यों 20 माइनस एक्स? क्योंकि उन दोनों का सम 20 है। तो लेट वन ऑफ द फ्रेंड्स एज बी x ईयर्स, देन अदर फ्रेंड्स एज विल बिकम 20 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो पहले x की टर्म्स में दोनों की एज लिख लेते हैं 4 ईयर एगो। सो फर्स्ट फ्रेंड्स एज वाज x minus 4 years and second friend's age 4 year ago was 20 minus x minus 4 years. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दो कांस्टेंट हैं यहाँ पे। 20 माइनस 4 कितना होगा? 16 माइनस एक्स ईयर, सेकेंड वाले की। अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या है? उनका प्रोडक्ट है 48। सो वी हैव x माइनस 4 इंटू दिस इक्वल्स टू, अगर ऐसे स्टेप्स में करोगे तुम्हारी गलती नहीं होगी। सो दिस इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जस्ट साइन का ध्यान रखो, माइनस 4 इंटू प्लस 16 माइनस x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। साइन गड़बड़ किया तो सब गलत हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x। ओके, तो हमारे पास आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x इज प्लस 20x, 16x प्लस 4x इज प्लस 20x, माइनस 64 माइनस 48 इस तरफ लेकर आते हैं, फिर बाद में सब उधर ले जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हम ऑलवेज कीप एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। नाउ प्लस 20x एंड इन दोनों को ऐड कर लो। 8 प्लस 4 12, सो 6 प्लस 4 10 प्लस 1। दोनों नेगेटिव हैं, वी ऐड एंड पुट माइनस साइन। बोथ नंबर नेगेटिव, वी ऐड एंड पुट माइनस साइन। ओके, नाउ क्योंकि ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं रखने का, हम उससे कैलकुलेशन ईजी, इससे भी तुम कर सकते हो कैलकुलेट, बट मेक इट ईजी बाय कीपिंग दिस एज पॉजिटिव। सो सबकी साइन चेंज कर दो। बेसिकली हम सबको उस तरफ ले जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाला पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव a as 1, b as minus 20 and c as 1 1 2 सॉरी 1 1 2। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे कि ऐसी ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं फाइंड करने के लिए। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2। सो दिस विल बिकम 400। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। 400 माइनस 4 2 8, सो 400 पॉजिटिव नंबर है, 448 नेगेटिव है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वी सबट्रैक्ट बिगर नंबर साइन। तो पहले ही साइन डाल दो। साइन कौन सी आएगी? 448 बड़ा है तो माइनस साइन आएगी, माइनस 48। सो क्या हो गया यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज देर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, नो रियल रूट, मीन्स no solution for this equation. Question number 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Okay, now एक rectangular park है। so इसका हम क्या करते हैं? लेंथ और ब्रेथ x एंड y ले लेते हैं। so let breadth be x and length be y meters. so हमने b को ले लिया x मीटर and length is y meter. now what is given? Perimeter equals to 80 meter and area equals to 400 meter square. Perimeter का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into length plus breadth equals to 80 meters, correct? So 2 into what is length? Length हमने क्या लिया? y, breadth क्या लिया? x equals to 80. सो 2 को उधर जाके डिवाइड कर दो, बिकॉज 2 इंटू समथिंग इन ब्रैकेट इक्वल्स टू 80. सो यू कैन टेक 2 दैट साइड एंड डिवाइड इट बाय 80. सो हमें क्या मिल गया? लेंथ प्लस ब्रेथ इज 40. ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ इज 40. अब वी हैव y प्लस x इक्वल्स टू 40 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x इंटू y इक्वल्स टू area is 400, length into breadth equals to area, so x into y equals to 400. अब हमें एक ही वेरिएबल की टर्म में इक्वेशन चाहिए
तो यहाँ पे देखो y प्लस एक्स इज़ 40, सो यू कैन टेक y एज 40 माइनस एक्स। एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, बिकॉज मुझे इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चाहिए। सो जो ये y है उसको हम x की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर विल गेट y एज 40 माइनस एक्स। So write y as 40 minus x and this is x only. In place of y 40 minus x. So you can replace x also in terms of y, तो पूरी इक्वेशन y की टर्म्स में आ जाएगी, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ मैंने y को ले लिया है 40 माइनस एक्स, वो हम लिख देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, सो दैट हमें पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिले, देन वी कैन सॉल्व इट। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा always try to keep x square coefficient positive, so take these to that side। माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x वहाँ जाके माइनस 40x हो जाएगा, 400 अपनी जगह पे ही है तो प्लस 400 उसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा इसलिए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, 40x उधर गया माइनस 40x, 400 अपनी जगह पे ही है प्लस 400 इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ गई अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो कभी कभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स एंड वाई लेना पड़ता है। एक्स एंड वाई लेके हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, नाउ हियर वी गेट एक्स इज a is 1, b is minus 40 and c is 400. Now first we'll find discriminant, whether it is possible or not. So what is discriminant? B square minus 4ac. B square is minus 40 square minus 4 into 1 into c is 400. So 4 4 is 1600. 4 4 is 60. 40 into 40, 2 0 and 4 4 is 16. Minus here also 1600. So this is 0. So this condition is possible. Why? When discriminant is 0 or greater than 0, then equation has real root, so it is possible. Now find value of x. x क्या है हमारा breadth, हमें डायरेक्टली breadth मिल जाएगा। x equals to minus b plus minus root of discriminant divided by 2a. So we have minus of minus 40 plus minus root 0 divided by 2 into 1. So we get minus minus plus हो जाएगा, 40 by 2 20 plus minus 0 it is same, whether plus 0 minus 0 it will remain same. So what is breadth? Breadth is 20 meter and what is length? Length क्या था हमारा y? What y equals to 40 minus x. 40 minus x, so that is equal to 40 minus 20, so that is also 20 meter. Okay, so both length and breadth are 20 meters. Thanks for watching. Please like and subscribe.